أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد. آپ تمام لوگوں کا سوال جواب کی نشست میں استقبال ہے. آئیے آج کا پہلا سوال لیتے ہیں، ہمارے بھائی کی طرف سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 73 فرقے میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، کیا ان لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تب جنت میں جائیں گے، یا غیر ایمان پہ ہونے کے بعد بھی جنت میں جائیں گے؟ تھوڑا خلاصہ کر کے بتائیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے پوچھا ہے کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو 72 فرقوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تب بھی کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ آئیے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں، ہمارے بھائی کا جواب دیکھتے ہیں. انہوں نے جو سوال کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں روایت ہے، ھذہ الامۃ علی 73 فرقۃ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے. کلہم فی النار الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے سب جہنم میں جائیں گے، یعنی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. قیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. حاضرین کرام، یہ نجات پانے والا فرقہ ناجیہ، یہ فرقہ کون سا ہے؟ یہ فرقہ وہ ہے جو صرف اور صرف کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر بات کو، ہر کام کو، ہر چیز کو قرآن و سنت کے ترازو میں رکھ کر تولتا ہے، توحید کا علم بردار ہے، بدعت سے نفرت کرتا ہے، قرآن اور حدیث کو صحابہ کی، سلف کی فہم کے مطابق سمجھتا ہے، یعنی کہ سلف نے کیسے سمجھا ویسے ہی سمجھتا ہے، خود سے نئے معنی نکال کر امت کو گمراہ نہیں کرتا اور نہ خود گمراہ ہوتا ہے، بلکہ منہج سلف پر ہوتا ہے. منہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. شریعت کو جو سمجھنے کا طریقہ ہے، شریعت پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ سلف سے لیتا ہے. صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، سلف نے کیسے عمل کیا، کس آیت کے کیا مطلب سمجھے، کس حدیث کے کیا معنی لیے، اس پر کیسے عمل کیا، ویسے ہی پریکٹس کرتا ہے. یہ فرقہ ناجیہ ہے. لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لیکن یہ فرقہ استقامت پر رہے گا، اپنی بات پر قائم رہے گا، اور قیامت تک یہ فرقہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، ہمیشہ حق کا طرفدار ہوگا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کسی امام یا علامہ کی بات کو ترجیح نہیں دے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھے گا. جب کبھی صحابہ کرام کی بات آئے، ان کا عمل آئے، تو اس کے بعد کسی اور امام یا مولانا کا عمل نہیں لے گا، بلکہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے گا. حاضرین کرام، یہ فرقہ ناجیہ ہے جو نجات پانے والا ہے اور جنت میں جانے والا ہے. رہے 72 فرقے، بھائی نے سوال کیا ہے کیا وہ ایمان پر مریں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے؟ میں ان کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے کہ وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ رسول اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوں گے، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہی ہے، کیونکہ ان کا عمل کرنے کا طریقہ غلط تھا، وہ نبی اور صحابہ کے طریقے پر نہیں تھے. اب ان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ کچھ مطلب نہیں رکھتا، ان کا خاتمہ جیسے بھی ہو، لیکن ان کو قیامت کے دن جہنم میں جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے جو 72 فرقے ہوں گے. لہٰذا کوشش کریں کہ ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں، قرآن اور حدیث کو سلف کے فہم کی طرح سمجھیں، سلف نے کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، ویسے ہی عمل کریں اور ویسے ہی سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ तबारक व तआला हमें उस एक फ़िरक़े में से बनाएं जो फ़िरक़ा जन्नत में जाने वाला है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे एक भाई का है। अस्सलाम वालेकुम, हाथों पर तस्बीह जैसा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने पूछा है कि क्या हाथ की उंगलियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। ये उनका सवाल है। आइए हम देखते हैं सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिज़ी में एक रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहुन्ना अन युराईना बित्तकबीर व तक़दीस व तहलील व अन याक़िदना बिल अनामिल फ़इन्नहुन्ना मसऊलातुन मुस्तंतक़ातुन। इस रिवायत के मानी ये हैं, तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तकबीर पढ़ें, अल्लाह की तक़दीस बयान करें और तहलील यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, जो भाई ने सवाल किया है, और व अन याक़िदना बिल अनामिल, और उसको उंगलियों पर गिनें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हारे इन आज़ा से सवाल किया जाएगा तो ये गवाही देंगी। इस रिवायत से पता चलता है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उंगलियों पर गिन सकते हैं। अगर हदीस में आया है कि इतनी बार पढ़ना है और आप उसको गिनना चाहते हैं तो आप उंगलियों पर गिनें। बहुत सारे लोग तस्बीह की मनके की तस्बीह बना लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो सुन्नत में नहीं है कि आप मनकों की तस्बीह बनाएं और मनके गिनें, बल्कि अल्लाह ने आपको उंगलियां दी हैं। इन उंगलियों को क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा और ये उंगलियां हमारे बारे में गवाही देंगी। इसलिए इन उंगलियों पर तस्बीह करें, इन उंगलियों पर तहलील करें, इन उंगलियों पर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करें। अगर आपको शुमार करना है, गिनना है कि हदीस में कहा गया इतनी बार पढ़ो, तो उसको कैसे गिना जाए, तो ऐसे गिनें। ये था हमारे भाई को जवाब कि आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि क्या औरतें हैज़ की हालत में सूरे की किताब और तस्बीहात पढ़ सकती हैं और मुसल्ले पर बैठ सकती हैं क्या? ये सवाल किया गया है। देखिए, शरीयत में नापाकी के दिनों में औरत को नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है, कुरान पढ़ने से नहीं, अल्लाह का ज़िक्र करने से मना नहीं किया गया है। लिहाजा वो नापाकी के दिनों में कुरान पढ़ सकती है। रहा सवाल कुरान को हाथ में लेकर पढ़ने का, तो वो कुरान की हार्ड कॉपी को डायरेक्टली छू नहीं सकती। वो चाहे तो मोबाइल में पढ़े या फिर कोई और उसको कुरान खोल कर दे और वो देख कर पढ़ती रहे, कोई और सफ़ा पलटे। इस तरीके से वो कुरान पढ़ सकती है और वो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद तक़दीस बयान कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर सोते वक्त अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ये क्या है? ये अल्लाह का ज़िक्र है, वो पढ़ सकती हैं। खाने से पहले बिस्मिल्लाह है। इस तरह और भी दुआएं हैं, ये तस्बीह कर सकती हैं और कुरान भी पढ़ सकती हैं। लेकिन कुरान के हार्ड कॉपी, कुरान के मुसहफ़ को छूना नहीं है नापाकी के दिनों में, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको पाक लोग ही छूते हैं। तो नापाकी के दिनों में वो छुए ना, बिल वास्ता इनडायरेक्टली वो छू सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर वो मोबाइल में कुरान ऑन करे और पढ़े, आज तो सहूलत है, लेकिन डायरेक्ट कुरान की कॉपी को न छुए। और इसी तरह उन्होंने पूछा है कि क्या वो मुसल्ले पर बैठ सकती है, तो हाँ बैठ सकती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी किया करती थी, हालांकि नापाकी के दिनों में होती थी। तो इसका मतलब यह है कि नापाकी के दिनों में होने से आपको नमाज से मना किया गया है। और रमज़ान में अगर नापाकी के दिन आते हैं तो आप रोज़े न रहें, उन रोज़ों की क़ज़ा बाद में करें, ये कहा गया है। आपको तस्बीह वगैरह से मना नहीं किया गया है, कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आपको नापाकी के दिन आए तो उन्होंने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तवाफ़ करने से मना किया। हालांकि हाजी कुरान भी पढ़ता है, तस्बीह भी पढ़ता है, दुआएं भी पढ़ता है,
तकबीर भी पढ़ता है, आप वसल्लम ने इन चीज़ों से मना नहीं किया, सिर्फ उनको तवाफ़ करने से मना किया। तो इसका मतलब ये है कि नापाकी के दिनों में आप कुरान पढ़ सकती हैं, नापाकी के दिनों में आप मुसल्ले पर भी बैठ सकती हैं, दीगर काम भी कर सकती हैं। आपको सिर्फ नमाज़ पढ़ने से मना किया गया। और अगर रमज़ान मुबारक है तो आप रोज़े रमज़ान में ना रखें, वो छूटे हुए रोज़े बाद में उसकी क़ज़ा करें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे भाई का है, देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस की रोशनी में इस लॉकडाउन के पीरियड में घरों में नमाज जमात के साथ कैसे अदा की जाए, मतलब मियाँ बीवी बच्चे किस तरतीब से नमाज पढ़ी जाए। भाई ने पूछा है कि लॉकडाउन में घर में बाजमात नमाज हो रही है, मियाँ बीवी बच्चे वगैरह हैं, तो वो नमाज़ कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे वैसे ही पढ़ें, अज़ान दें और जमात खड़ी करें। बस नमाज में खड़े किस तरह होना है ये देखें कि घर में जो बड़ा शख्स है, उम्र वाला है और इल्म वाला है और कुरान उसको सबसे ज़्यादा याद है, तो उसको चाहिए कि वो इमामत करे। उसके पीछे मर्द खड़े हों और उसके पीछे बच्चे खड़े हों, फिर उसके पीछे औरतें खड़ी हों। जैसे अभी हम लोग देखते हैं रिवायत क्या है, सही मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लियलिनी मिनकुम उलुल अहलामी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे करीब वो लोग खड़े हों जो बालिग हों, उम्र में बड़े हों और इल्म वाले हों, संजीदा हों, ऐसे लोग बुज़ुर्ग हों, ऐसे लोग मेरे करीब खड़े हों नमाज में, यानी कि पहली सफ़ में आप वसल्लम से करीब। और उसके बाद सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, इमाम के पीछे घर के बड़े हों, बुज़ुर्ग हों और उसके बाद बच्चे खड़े हों, फिर उसके बाद औरतों की सफ़ हो। देखिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में रिवायत है, सल्लैतु अना व यतीमुन फ़ी बैतिना खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे घर में नमाज़ पढ़ा, एक यतीम बच्चा मेरे साथ था, हम आप वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़े। वह उम्मी और मेरी अम्मा उम्म सुलैम जिनका नाम था, खल्फ़ना वो हमारे पीछे थी, यानी कि आप वसल्लम खड़े थे, उनके पीछे ये थे, एक यतीम बच्चा भी था और उनके पीछे उनकी अम्मी थी उम्म सुलैम। इससे पता चलता है कि इमाम हो, फिर उसके बाद मर्द हों और फिर उसके बाद बच्चों की सफ़ है, फिर उसके बाद औरतों की सफ़ है। लिहाजा ये तरतीब है, इस तरीके से नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और जल्दी से जल्दी मसाजिद को हमारे लिए खोल दे, इस कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म कर दे और अल्लाह के घर में हमको आने की इजाज़त दे दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम सदका व खैरात करें, अल्लाह की नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाएँ। आप भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, अपने सवाल को ऑडियो मैसेज बनाइए और व्हाट्सअप कीजिए। नंबर है 9766310478। ये दूसरों को भी पहुँचाएँ ताकि जिसको मालूमात नहीं है वो इल्म हासिल करे और अमल करे। इसका सवाब इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको भी देगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, लाइक करें।